اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ تو آج جس طرح جج صاحبان نے نیب سے سوال کیے اور نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں کورٹ کی کارروائی پہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی، میں لیکن کورٹ رپورٹرز سے، محترم رپورٹر سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ آج قوم کو ضرور بتائیں کہ کس طرح نیب کا، عمران خان اور نیب کے گٹھ جوڑ کا آج اللہ تعالیٰ نے پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی اور فیصلے کا اور انصاف کا انتظار کروں گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ شکریہ۔ مریم صاحبہ کیا کہیں گی کہ آج ایسے اقبال صاحب نے کہا کہ 5 حکومتی وزراء کے جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وزراء کی جانب سے بھی عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کر لیا گیا اور کب تک یہ معاملات طے کر لیے جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب عوام کی جانب سے عدم اعتماد ہو جاتا ہے کسی حکومت کے اوپر تو پھر وہ آپ کے ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھیں عدم اعتماد کرنے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کی پارٹی وہ پارٹی تو ہے نہیں جس میں کوئی آئیڈیالوجی سے جڑے لوگ ہیں یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کی لائلٹیز ہیں یا کمٹمنٹ ہے۔ وہ سب اقتدار کے ساتھی تھے، اور جب اقتدار کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے گی۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا ثبوت ابھی آپ نے فیصل آباد میں دیکھا ہے۔ تو میں نے تو بڑی احترام کے ساتھ عرض کیا تھا، ایک مشورہ دیا تھا کہ اب جب آپ عوام میں جائیں، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو میں آج دوبارہ بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں۔ بھلے آپ ٹرکس کے اوپر چڑھ جائیں، جہاں بھی چڑھ جائیں، عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ اپنی خیر منائیں۔ مریم، جب آپ نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا تھا تو سب یہ توقع کر رہے تھے کہ ملک میں فوری عام انتخابات کرائے جائیں گے، مگر اب آپ کے ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کا تعلق ان ہاؤس چینج سے اور نئے وزیر اعظم سے ہو گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر ہی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ایک آئینی طریقہ ہے، گو کہ شاید اس پہ ہماری جماعت کی پہلے 2 آراء تھیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، جو میں نے بات باقی جماعتوں کے لیے کہی وہ میں آپ کو بھی کہوں گی کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی جو ہیں وہ پیپل آف پاکستان ہے، وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور اب یہ ذمہ داری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر، یہ فرض میں شامل ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کی صورت میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر جو عذاب مسلط ہوا ہے اس سے عمران خان سے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جائے۔ اور ایک اور بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر اپوزیشن نے عوام کی آواز پہ، عوام کی ضرورت پہ، عوام کی چیخ و پکار پہ، عوام کی آہوں پر اگر لبیک نہ کہا تو جتنی قصوروار یہ گورنمنٹ ہوگی عوام کی تباہی کی، میرا خیال ہے کہ عوام اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ پھر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی کریں گے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پبلک پلس کو ریڈ کرنا، پبلک کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ سب سے زیادہ پرائم رسپانسبلٹی ہے عوام کی۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں مطیع اللہ جان صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب، وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے، لیکن جماعت میں جب ڈسکشن ہوئی، ظاہر ہے جماعت نے پورا جو ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی، بڑی اچھی بات ہے کہ پورا فیصلے کا اختیار انہوں نے نواز شریف صاحب کو دے دیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ بہت ایک فہم و فراست رکھنے والے شخص ہیں، عوام کا درد رکھنے والے شخص ہیں۔ تو میاں صاحب پہلے اس چیز پہ کنونس نہیں تھے، تو بہت ساری آراء تھیں پارٹی میں، تو سب نے یہ بات کہی کہ آپ کی بطور سینئر ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں، عوام کی کو تکلیفوں سے، مہنگائی سے، عذاب سے جو ان کے اوپر عمران کی شکل میں مسلط ہوا ہے اس سے ان کو نجات دلائیں۔ تو یہ ذمہ داری آپ کو فرض سمجھ کے ادا کرنی ہوگی، اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ قوم، یہ ملک، یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کیا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے؟ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہی ہیں، کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے، سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا تھا، جھوٹ بولیں، سازش کریں یا کچھ بھی کر لیں،
जज साहिबान ने नैब से सवाल किए, कोई जवाब नहीं था। इमरान खान की जमात में कोई नजरियाती लोग नहीं है। इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है, और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ आवाम की बात नहीं हो रही, जाहिर है वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है, जहाँ पर ये हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत अफेक्ट किया है, उनको भी रोज़ी और रोटी की मुसीबत पड़ी हुई है। वो अपने जिम्मेदारियां अदा करें या अपने किचन का वो देखें कि रोटी पूरी हो रही है, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब बातें कंट्रीब्यूट करती हैं इस वक्त सेंटिमेंट बना है एंटी गवर्नमेंट उसमें, और उसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के अवाम की आवाज़। उस पर सबको लब्बैक कहना पड़ेगा। अच्छा, मैम हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन के नंबर ही पूरे नहीं हैं, पहले वो अपने नंबर पूरे करे फिर अदम एतमाद की तरफ आए। पहले अपोजिशन को अपने नंबर गिने, हमारे तादियों से राब्ते में वो पहले ही जा चुकी है। तो आप क्या कहती हैं, आप लोगों के नंबर पूरे हैं? क्योंकि माजी में देखिए, देखा गया है कि मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, कल भी उन्होंने एक तकरीर की, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नज़र आ रही है, और वो कश्ती उनको सिर्फ इसलिए डूबती नहीं नज़र आ रही कि पाकिस्तान के अवाम तंग आ चुके हैं या अब वो अनटेनेबल हो गए, उनका बोझ कोई और ढो नहीं सकता, इदारे नहीं ढो सकते। आई थिंक वो उनकी चीखें इसलिए नज़र आ रही कि उनको ये भी पता है कि उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो उनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वो उसका सबूत ये है कि अभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको उसको जक्सटापोज करके दिखा देती हूँ। नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनको मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो आ नहीं सकते अभी मुल्क में फ़ौरन। तो आप ये देखें कि जमात, पूरी जमात मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही है और नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मुत्तहिद रही है। तो अब आप देखें, और उसके अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं, या मीडिया पे उनके जो इंकशाफात हैं वो भी सुनने वाले हैं। तो उनको ये नविश्ता दीवार साफ नज़र आ रहा है कि दीवार पे क्या लिखा है। तो इमरान खान साहब जो रोज़ उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है, जो ये समझता है कि उसका ये जो प्रेजेंट है वो तो ख़त्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी उनके इत्तेहादी हैं, एलाइज़ हैं, इमरान खान साहब की नाकामी का, नाअहली का, नालायकी का, तारीख़ी नाकामी का बोझ लेकर उनके इत्तेहादी मैदान में नहीं जाएंगे, इलेक्शन के मैदान में नहीं उतर सकते, उनके MNAs नहीं उतर सकते, उनके MPAs नहीं उतर सकते, और इस बात का इदराक उनके MNAs और MPAs को है। मैडम, एक सवाल आपसे। जी मैडम, ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन आज तक आप लोग सेनेट में कामयाब नहीं। इमरान खान एतमाद का वोट इससे पहले भी सभी से ले चुके हैं, आप लोगों को पता है, उसमें ऑपोजिशन का क्या हाल हुआ था। अभी क्या ऑपोजिशन को कोई इशारा मिला है जो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और अदम एतमाद कामयाब भी हो? मैं इसका मरियम, जी सवाल है जी कि क्या अब आपका एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हालात इस वक्त इसलिए बदलें कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो आवाम की बद्दुआएं हैं, और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है, और जो महंगाई का आलम है और आवाम के गुस्से का आलम है, आवाम भरे बैठे हैं, तो हालात इस वजह से बदलें, हालात किसी और वजह से नहीं बदले। और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं। हमें ज़रूर ये अटैम्प्ट करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटैम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी। और मैं PTI के MNAs और MPAs को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने, तो इस चीज़ में अब आप जो है वो
ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करें, और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मुझे नज़र आ रहा है हालात बहुत बदल चुके हैं। जी इसके बाद जी पीडीएम में वापसी की राय हमवार हो गई है, क्या कोई इशारा मिला है मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि इनको शामिल किया जाए? साथ साथ ये भी कि अगर नया सेटअप आता है तो पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह का नाम तजवीज़ किया, आप लोग उसकी हमायत करेंगे? देखिए, ये तो अभी दूर का सवाल है। पहले तो सबसे जो पहला मरहला अभी हमें दरपेश है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। पहले हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद ये जो बाकी डिसीजंस हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन टेक ओवर करेगा, क्या होगा, ये सब बाद की बातें ही हम बाद में डिसाइड करेंगे। एक मिनट बारी जी हुकूमत एक तरफ तो आप लोगों का ठीक है, आप अदम इत्तेमाद की अवल से इकट्ठी होगी, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 10 वज़राओं को बेहतरीन सर्टिफिकेट दिए कर रही थी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने 15% सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह दी है, और मुल्क जो है वो बेहतरी की मैशियत बेहतर हो गई है, और अगले 3 महीनों में मज़ीद जो है तनख्वाहें बढ़ाएंगे। आपके दो सवाल हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक इनाम दे दिया है इमरान खान को, और वो है वो जितने भी अपने वज़रा को तमगे दें, कुछ दें, और वो तमगा जो आपको पता है कौन कौन सी मिनिस्ट्री को मिला, ज़रा बताइएंगे। खारजा नहीं है, मैशत नहीं है, उसमें मईशत नहीं है, उसमें खारजा नहीं है, जो पाकिस्तान को अच्छा पावर नहीं, जहाँ जहाँ मैसिव कोलोसल फेलियर्स हैं वहाँ वो उनको खुद पता है। शायद इस चीज़ में उनको लगता है उनको कामयाबी हुई है कि उनका प्रोपेगेंडा सेल जो है वो बड़ा हरकत में रहा है और बड़ा मुतहरिक रहा है। तो ये भी मैं बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों के मीडिया चैनल्स पे एक सर्वे देख रही थी जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की नैरेटिव को, वो जो उसका चोर चोर डाकू डाकू का नैरेटिव था, उसको उन्होंने डिसोन कर दिया है। पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि वो झूठ था, और ना सिर्फ वो झूठ था बल्कि सबसे तारीख के बड़े चोर, सबसे बड़े तारीख के करप्ट, सबसे बड़े तारीख के रिश्वतखोर ये हुकूमत है इमरान खान और उसके सारे साथी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि करप्शन कहीं रह गई, जो इनकी रिश्वतखोरी की दास्तानें, SHO जो है ना 1-1 करोड़ रुपया दे के अपॉइंट हो रहा था, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और इनका एहतसाब का नैरेटिव इतनी बुरी तरह फेल हुआ है कि अभी शहबाज शरीफ साहब की UK के कोर्ट से एक फिर गवाही आई है। तो मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि बजाय इसके कि जो आप पब्लिक अभी कैंपेन अपनी करने लगे हैं, उसमें जो तकरीरें आप करते हैं, बजाय इसमें कि आप वो अपना फेल्ड नैरेटिव जो चोर डाकू का नैरेटिव था कि पिछली हुकूमतें कर गईं सब कुछ, वो सब अवाम ने रद्द कर दिया है। तो ज़रा पेपर उठाएं और अवाम को ये बताएं कि कोर्ट से क्या गवाहियाँ आ रही हैं हमारे हक में, और कोर्ट्स ने उनकी जो नैरेटिव थी उसको झूठा साबित कर दिया। तो उनका मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पे वो तकिया कर सकें। जी देखिए, तनख्वाही नहीं, देखिए 15% आपने तनख्वाह बढ़ा दी है, और महंगाई कितने % बढ़ी है? कई एरियाज में महंगाई 500%, 600%, 700% बढ़ी है। तो 15% जो तनख्वाहों में इजाफा है, मुझे हमदर्दी है उन लोगों के साथ, वो 15% तनख्वाह में इजाफा क्या करेंगे जब आपको बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा आएगा, जब आपके किचन के बिल, आपको आटा, चीनी, सब्जी, गोश्त, अंडे, मुर्गी सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा। जब आप पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये जो पेट्रोल के लिए मैं पैसे दूं, ये अब मैं इससे घर का किचन चलाऊं या पेट्रोल के पैसे दूं। महंगाइयों में 600-700% दवाइयों की कीमत में इजाफा हो गया। तो वहाँ 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा वहाँ? तो बिल्कुल जी। कोई और सवाल है? ये कि जहांगीर तरीन साहब ग्रुप जो उनका है वो आपके साथ, नून के साथ कितना राब्ते में, और आपको तो है कि आपके अदम एतमाद से पहले वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे? सारी बातें मैं आज ही बता दूँ आपको। थैंक यू। मरीम नवाज गुफ्तगू कर रही थी, कहती हैं गुफ्तगू से पहले अदम एतमाद पर मियाँ साहब मुत्तफिक नहीं थे। नवाज शरीफ पहले अदम एतमाद के कायल नहीं थे। जब जमात में बात हुई, मुख्तलिफ आरा आई, तो CEC ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। साथ ही कहती हैं इमरान खान के इख्तिदार की कश्ती डूबती नजर आ रही है। महंगाई ने फौजी भाइयों के घरों को भी मुतासिर किया है। जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी तरजीह भी अवाम है।
वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें या अपना रोटी पानी बिल पूरा करें। इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का खत पढ़कर सुनाया। जजेस ने इस्तफसार किया कि क्या ये खत आप ही के बुनियादी शवाहिद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। शाह खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खालिद, आज की समाअत का हवाल सुनाइए। जी शाह खालिद, आप से हम मालूमात लेंगे। नाज़रीन को मैं हम आगाह कर रहे हैं, जो आज ये समाअत हुई है, नैब ने अदालती सवाल का जवाब देना है। मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं, तो इसके पीछे पैसा लगाने वाला कौन है? नैब ने यह बताना है पैसा मरियम नवाज ने लगाया तो नवाज शरीफ ने या किसी और ने। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ ने गलत तरीके से हासिल रकम मरियम नवाज को दी। यह भी बताना है कि अगर रकम नवाज शरीफ ने दी फिर मरियम का जुर्म कैसे बनता है। आपने सिर्फ इतना बताना है कि मरियम नवाज ने ऐसा क्या किया जिससे वो मुल्जिम करार पाई। ये आपको बता दें कि अब इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नैब अदालत के सवाल का जवाब देगा तो ही हम यहां से उठेंगे। बार बार इल्तवा नहीं दिया जा सकता। आप जवाब दें फिर इरफान कादिर को सुनेंगे। अभी तो एक सवाल सामने रखा और इसी पर ही घूमे जा रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि मरकजी मुल्जिम ये बताने से कासिर रहीं कि उन्होंने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब ने पहले मरहले में 23 जाली कंपनियों और दर्जनों जाली अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। मसरूर अनवर ने इन अकाउंट्स से ट्रांजैक्शन की रकम जमा भी करवाई और निकलवाई भी गई। अब तक इस मामले में कब क्या हुआ जानते हैं। नुकसान हो या फायदा, इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे। अवाम का वोट है तो एहतसाब भी अवाम करेंगे। लूटा हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा। शहबाज गिल का ऐलान। कहते हैं बरतानिया में जुल्फिकार नामी शख्स इनके ATM हैं। बात बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं जो गलत तरीके से बनाए हुए, ये उनका क्लेम है। इसलिए उन्हें ऐसा वीजा दिया जाए जिसमें वो वहां के लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद वो परमानेंट स्टे और नेशनैलिटी वहां की ले लेंगे। सलमान शहबाज ने खुद अप्लाई किया। जैसे पहले मलक मकसूद चपड़ासी को पाकिस्तान में अमीर किया, अब वहां पर माइकल को ये अमीर करने गए हैं। उनके पास जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ये कहता है। जुल्फकार साहब नाम के वहां पर इनके ATM हैं, दही लेने के लिए, रोटी खाने के लिए। जुल्फकार साहब इनको वो प्रोवाइड करते हैं। अनिल मुसरत साहब से इन्होंने कहा कि हमने कर्जा लेके एक अपार्टमेंट खरीदा है, वो करोड़ों रुपए में अपार्टमेंट बिका, तो उसका पैसा अनिल मुसरत को नहीं गया वापस, वो पैसा सलमान शहबाज के अकाउंट में गया। पैसा भी लिया जेब खर्च का जुल्फकार अहमद साहब से, और उनके साथ अब कारोबार भी करना है इन्होंने। महारत इनकी है, पैसा उनका है। इनके और मलक मकसूद चपड़ासी के और अरबों रुपए के दरमियान में एक ही शख्स खड़ा है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान इनके साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान को उसका नुकसान हो या फायदा हो, अवाम का वोट है तो एहतसाब भी अवाम करेगी आपका। ये लूटा हुआ पैसा भी वापस देना पड़ेगा, और जो दूसरा पैसा अभी रिवील नहीं हुआ वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी काबीना के लिए जजा और सजा की पॉलिसी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 10 वफाकी वजारतों में तारीफी असनाद तकसीम। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कारकर्दगी में सबसे आगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का दूसरा नंबर, सानिया निश्तर की तीसरी पोजीशन, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का चौथा, वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी का 5वां नंबर, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने छठी। कारकर्दगी के एतबार से मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने 7वीं पोजीशन हासिल की। अब्दुल रज़ाक दाऊद, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और फ़ख्र इमाम को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी की काबीना की 10 वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कहते हैं हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी इन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जब वजारत वज़ीर आज़म ऑफिस को देती है। मैंने कुछ मंसूबों में रद्दोबदल किया है जो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद होंगे इंशाअल्लाह।
سینیٹر فیصل جاوید کا وزارتوں کی کارکردگی سے متعلق فواد چودھری کے ٹویٹ پر رد عمل. کہتے ہیں بھائی آپ کی وزارت کا تو کام ہی دوسری وزارتوں کی کارکردگی کو اجاگر کرنا ہے, اس لحاظ سے تو آپ کی کارکردگی بھی بہترین ہے. وفاقی کابینہ کے لیے جزا اور سزا کی پالیسی, بہترین کارکردگی دکھانے والے وزیروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس کی تقسیم. وزیر اعظم عمران خان کا وزارت مواصلات کے ٹاپ پر آنے پر مراد سعید کو خراج تحسین. کہتے ہیں وزارتوں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہوگا, بہترین کارکردگی والی وزارتوں کو مراد دی جائیں گی. رخ کریں گے اسلام آباد کا, جہاں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. The alienation one sees today, one has never seen before. They are gradually, slowly but surely, distancing themselves from Delhi. They are not looking up to Delhi anymore for solutions. And they are quietly, under the surface, talking on how to resist this onslaught, this inhuman onslaught through a people's resistance movement. This exhibition depicts how humanity is suffering. One understands, for different reasons, at times people who do understand what the reality is choose to keep quiet. Political expediency dictates. Commercial interests force you to remain. خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.